السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل مرزا کی ہیر کی آنے والے ایپیسوڈ کے حوالے سے، جہاں پچھلے ایپیسوڈ کے ایموشنل ٹویسٹ کے بعد کہانی اور بھی انٹینس ہو چکی ہے۔ اس دفعہ محبت یا شادی کا مسئلہ نہیں بلکہ عزت، قرض اور گھر کی قیمت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہیر کو کائنات کے دل کا راز پتہ چلتا ہے اور تیمور اپنی بہن کے لیے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب کہانی ایک نئی ڈائریکشن لیتی ہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے ہیر کے گھر کی طرف، جہاں فائنینشل پریشر اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ ہیر کے ماموں اور گھر والے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ حویلی کو بیچ دینے کی بہترین سلوشن یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی رقم مل سکتی ہے جو نہ صرف پرانے قرض ختم کرے گی بلکہ ان کی زندگی کو بھی آسان بنا دے گی۔ زبیر کا کردار یہاں کافی اگریسو نظر آئے گا۔ وہ سیدھا کہہ دیتا ہے کہ اتنا بڑا قرض کسی جاب یا محنت سے اترنا ممکن نہیں، اس کے لیے یہ ایک بزنس ڈیل ہے۔ ایموشن سے زیادہ پریکٹیکل سوچ ضروری ہے، لیکن زینت جو ہیر کی مدر ہیں، ان کا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ اپنی والد کی یادوں اور عزت کو اس گھر سے جوڑ کر دیکھتی ہے۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے باپ کی نشانی کو قربان نہیں کر سکتی۔ یہاں پر ہیر کا سٹانس اور بھی سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل کلیئر کہہ دیتی ہے کہ صرف ایک پراپرٹی نہیں بلکہ ان کے نانوں کی پہچان ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنا حصہ لے کر اس گھر کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اسی درمیان ایک اور ڈینجرس اینگل سامنے آتا ہے۔ قرض دینے والے لوگ، ان کا پریشر دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے اور دھمکیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ہنٹ ملتا ہے کہ اگر پیسے واپس نہ ہوئے تو بات صرف فائنینشیل تک نہیں رہے گی۔ دوسری طرف مرزا بھی سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہیر سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ مرزا کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے سکتا ہے، لیکن ہیر کا جواب یہاں بھی بہت ریئلسٹک ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ صرف ساتھ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتے، کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو جذبات سے نہیں بدلتی۔ یہاں پر دونوں کے درمیان ایک ایموشنل گیپ بھی نظر آتا ہے۔ مرزا دل سے سوچ رہا ہوتا ہے جبکہ ہیر مجبوریوں اور ذمہ داریوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ اب کہانی کا سب سے پاورفل سین آتا ہے آغا جی کا۔ وہ حویلی کے اندر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ دیواریں ان کے لیے صرف پتھر نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی ہے۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے کوئی بھی اس گھر کو نہیں بیچ سکتا، لیکن یہاں دادی کا کردار ایک بیلنسڈ پرسپیکٹیو دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ صرف یادوں کے سہارے زندگی نہیں چلتی، جب بچوں کی زندگی داؤ پر ہو تو فیصلے بھی واقعی مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ سین اصل میں پرانی اور نئی سوچ کا کلیش ہے، ایک طرف روایات اور جذبات اور دوسری طرف حقیقت اور ضرورت۔ ادھر تیمور اور کائنات کی کہانی بھی رکتی نہیں۔ تیمور اب بھی کنفیوز ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے خلاف کتنا جا سکتا ہے۔ کائنات کے لیے اس کا پیار اور ذمہ داری دونوں اسے ایک مشکل پوزیشن میں لے آتی ہے، اور ہیر وہ اب 3 الگ بیٹلز لڑ رہی ہے، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے اور ایک اپنے دل کے خلاف۔ اب آنے والے ایپیسوڈ میں سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا حویلی بچ پائے گی یا مجبوری کے آگے ہار مان جائے گی؟ کیا مرزا سچ میں ہیر کے لیے کچھ کر پائے گا یا صرف تسلی تک رہ جائے گا؟ اور کیا ہیر اپنے فیصلوں پر قائم رہ پائے گی جب پریشر اور بڑھ جائے گا؟ کہانی اب بہت کریٹیکل سٹیج پر آ چکی ہے، جہاں ہر ڈیسیجن کا ڈائریکٹ امپیکٹ سب کی زندگی پر اثر پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کا ڈیپ پریڈکشن اور ہڈن کلوز بھی شیئر کروں تو ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मिर्ज़ा की हीर की आने वाले एपिसोड के हवाले से, जहां पिछले एपिसोड के इमोशनल ट्विस्ट के बाद कहानी और भी इंटेंस हो चुकी है। इस दफ़ा मोहब्बत या शादी का मसला नहीं बल्कि इज्जत, कर्ज और घर की कीमत दांव पर लगी हुई है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हीर को कायनात के दिल का राज पता चलता है और तैमूर अपनी बहन के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन अब कहानी एक नई डायरेक्शन लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है हीर के घर की तरफ, जहां फाइनेंशियल प्रेशर अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। हीर के मामू और घर वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हवेली को बेच देने की बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम मिल सकती है जो ना सिर्फ पुराने कर्ज ख़त्म करेगी बल्कि उनकी ज़िंदगी को भी आसान बना देगी। ज़ुबैर का किरदार यहाँ काफ़ी एग्रेसिव नज़र आएगा। वो सीधा कह देता है कि इतना बड़ा कर्ज किसी जॉब या मेहनत से उतरना मुमकिन नहीं, उसके लिए ये एक बिजनेस डील है। इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच ज़रूरी है। लेकिन जीनत जो हीर की मदर हैं, उनका दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता। वो अपनी वालिद की यादों और इज़्ज़त को इस घर से जोड़कर देखती है। उनका कहना होता है कि वो अपनी बेटी का बोझ हल्का करने के लिए अपने बाप की निशानी को कुर्बान नहीं कर सकती। यहाँ पर हीर का स्टांस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो बिल्कुल क्लियर कह देती है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उनके नानों की पहचान है। वो किसी भी सूरत में अपना हिस्सा लेकर इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। इसी दरमियान एक और डेंजरस एंगल सामने आता है। कर्ज देने वाले लोग, उनका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि हिंट मिलता है कि अगर पैसे वापस ना हुए तो बात सिर्फ फाइनेंशियल लॉस तक नहीं रहेगी। दूसरी तरफ मिर्ज़ा भी सब कुछ समझ रहा होता है। वो हीर से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेली नहीं है। मिर्ज़ा का कहना होता है कि अगर वो चाहे तो वो हर मुश्किल में उसका साथ दे सकता है। लेकिन हीर का जवाब यहाँ भी बहुत रियलिस्टिक होता है। वो कहती है कि सिर्फ साथ देने से मसला हल नहीं होते, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो जज्बात से नहीं बदलती। यहाँ पर दोनों के दरमियान एक इमोशनल गैप भी नज़र आता है। मिर्ज़ा दिल से सोच रहा होता है जबकि हीर मजबूरियों और ज़िम्मेदारियों के दरमियान फंसी हुई है। अब कहानी का सबसे पावरफुल सीन आता है आगा जी का। वो हवेली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि ये दीवारें उनके लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी है। उनका कहना होता है कि जब तक वो ज़िंदा है कोई भी इस घर को नहीं बेच सकता। लेकिन यहाँ दादी का किरदार एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देता है। वो कहती हैं कि सिर्फ यादों के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती। जब बच्चों की ज़िंदगी दांव पर हो तो फैसले भी वाकई मुश्किल हो जाते हैं। ये सीन असल में पुरानी और नई सोच का क्लैश है। एक तरफ रिवायात और जज्बात और दूसरी तरफ हकीकत और ज़रूरत। इधर तैमूर और कायनात की कहानी भी रुकती नहीं। तैमूर अब भी कंफ्यूज है कि वो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ कितना जा सकता है। कायनात के लिए उसका प्यार और ज़िम्मेदारी दोनों उसे एक मुश्किल पोजीशन में ले आती है। और हीर वो अब 3 अलग बैटल्स लड़ रही है, एक अपने घर के लिए, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और एक अपने दिल के खिलाफ। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हवेली बच पाएगी या मजबूरी के आगे हार मान जाएगी? क्या मिर्ज़ा सच में हीर के लिए कुछ कर पाएगा या सिर्फ तसल्ली तक रह जाएगा? और क्या हीर अपने फैसलों पर कायम रह पाएगी जब प्रेशर और बढ़ जाएगा? कहानी अब बहुत क्रिटिकल स्टेज पर आ चुकी है जहां हर डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट सबकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड का डीप प्रेडिक्शन और हिडन क्लूज भी शेयर करूं तो ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मिर्ज़ा की हीर की आने वाले एपिसोड के हवाले से, जहां पिछले एपिसोड के इमोशनल ट्विस्ट के बाद कहानी और भी इंटेंस हो चुकी है। इस दफ़ा मोहब्बत या शादी का मसला नहीं बल्कि इज्जत, कर्ज और घर की कीमत दांव पर लगी हुई है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हीर को कायनात के दिल का राज पता चलता है और तैमूर अपनी बहन के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन अब कहानी एक नई डायरेक्शन लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है हीर के घर की तरफ, जहां फाइनेंशियल प्रेशर अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। हीर के मामू और घर वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हवेली को बेच देने की बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम मिल सकती है जो ना सिर्फ पुराने कर्ज ख़त्म करेगी बल्कि उनकी ज़िंदगी को भी आसान बना देगी। ज़ुबैर का किरदार यहाँ काफ़ी एग्रेसिव नज़र आएगा। वो सीधा कह देता है कि इतना बड़ा कर्ज किसी जॉब या मेहनत से उतरना मुमकिन नहीं, उसके लिए ये एक बिजनेस डील है। इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच ज़रूरी है। लेकिन जीनत जो हीर की मदर हैं, उनका दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता। वो अपनी वालिद की यादों और इज़्ज़त को इस घर से जोड़कर देखती है। उनका कहना होता है कि वो अपनी बेटी का बोझ हल्का करने के लिए अपने बाप की निशानी को कुर्बान नहीं कर सकती। यहाँ पर हीर का स्टांस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो बिल्कुल क्लियर कह देती है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उनके नानों की पहचान है। वो किसी भी सूरत में अपना हिस्सा लेकर इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। इसी दरमियान एक और डेंजरस एंगल सामने आता है। कर्ज देने वाले लोग, उनका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि हिंट मिलता है कि अगर पैसे वापस ना हुए तो बात सिर्फ फाइनेंशियल लॉस तक नहीं रहेगी। दूसरी तरफ मिर्ज़ा भी सब कुछ समझ रहा होता है। वो हीर से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेली नहीं है। मिर्ज़ा का कहना होता है कि अगर वो चाहे तो वो हर मुश्किल में उसका साथ दे सकता है। लेकिन हीर का जवाब यहाँ भी बहुत रियलिस्टिक होता है। वो कहती है कि सिर्फ साथ देने से मसला हल नहीं होते, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो जज्बात से नहीं बदलती। यहाँ पर दोनों के दरमियान एक इमोशनल गैप भी नज़र आता है। मिर्ज़ा दिल से सोच रहा होता है जबकि हीर मजबूरियों और ज़िम्मेदारियों के दरमियान फंसी हुई है। अब कहानी का सबसे पावरफुल सीन आता है आगा जी का। वो हवेली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि ये दीवारें उनके लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी है। उनका कहना होता है कि जब तक वो ज़िंदा है कोई भी इस घर को नहीं बेच सकता। लेकिन यहाँ दादी का किरदार एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देता है। वो कहती हैं कि सिर्फ यादों के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती। जब बच्चों की ज़िंदगी दांव पर हो तो फैसले भी वाकई मुश्किल हो जाते हैं। ये सीन असल में पुरानी और नई सोच का क्लैश है। एक तरफ रिवायात और जज्बात और दूसरी तरफ हकीकत और ज़रूरत। इधर तैमूर और कायनात की कहानी भी रुकती नहीं। तैमूर अब भी कंफ्यूज है कि वो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ कितना जा सकता है। कायनात के लिए उसका प्यार और ज़िम्मेदारी दोनों उसे एक मुश्किल पोजीशन में ले आती है। और हीर वो अब 3 अलग बैटल्स लड़ रही है, एक अपने घर के लिए, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और एक अपने दिल के खिलाफ। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हवेली बच पाएगी या मजबूरी के आगे हार मान जाएगी? क्या मिर्ज़ा सच में हीर के लिए कुछ कर पाएगा या सिर्फ तसल्ली तक रह जाएगा? और क्या हीर अपने फैसलों पर कायम रह पाएगी जब प्रेशर और बढ़ जाएगा? कहानी अब बहुत क्रिटिकल स्टेज पर आ चुकी है जहां हर डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट सबकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड का डीप प्रेडिक्शन और हिडन क्लूज़ भी शेयर करूं तो ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मिर्ज़ा की हीर की आने वाले एपिसोड के हवाले से, जहां पिछले एपिसोड के इमोशनल ट्विस्ट के बाद कहानी और भी इंटेंस हो चुकी है। इस दफ़ा मोहब्बत या शादी का मसला नहीं बल्कि इज्जत, कर्ज और घर की कीमत दांव पर लगी हुई है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हीर को कायनात के दिल का राज पता चलता है और तैमूर अपनी बहन के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन अब कहानी एक नई डायरेक्शन लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है हीर के घर की तरफ, जहां फाइनेंशियल प्रेशर अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। हीर के मामू और घर वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हवेली को बेच देने की बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम मिल सकती है जो ना सिर्फ पुराने कर्ज ख़त्म करेगी बल्कि उनकी ज़िंदगी को भी आसान बना देगी। ज़ुबैर का किरदार यहाँ काफ़ी एग्रेसिव नज़र आएगा। वो सीधा कह देता है कि इतना बड़ा कर्ज किसी जॉब या मेहनत से उतरना मुमकिन नहीं, उसके लिए ये एक बिजनेस डील है। इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच ज़रूरी है। लेकिन जीनत जो हीर की मदर हैं, उनका दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता। वो अपनी वालिद की यादों और इज़्ज़त को इस घर से जोड़कर देखती है। उनका कहना होता है कि वो अपनी बेटी का बोझ हल्का करने के लिए अपने बाप की निशानी को कुर्बान नहीं कर सकती। यहाँ पर हीर का स्टांस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो बिल्कुल क्लियर कह देती है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उनके नानों की पहचान है। वो किसी भी सूरत में अपना हिस्सा लेकर इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। इसी दरमियान एक और डेंजरस एंगल सामने आता है। कर्ज देने वाले लोग, उनका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि हिंट मिलता है कि अगर पैसे वापस ना हुए तो बात सिर्फ फाइनेंशियल लॉस तक नहीं रहेगी। दूसरी तरफ मिर्ज़ा भी सब कुछ समझ रहा होता है। वो हीर से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेली नहीं है। मिर्ज़ा का कहना होता है कि अगर वो चाहे तो वो हर मुश्किल में उसका साथ दे सकता है, लेकिन हीर का जवाब यहाँ भी बहुत रियलिस्टिक होता है। वो कहती है कि सिर्फ साथ देने से मसला हल नहीं होते, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो जज्बात से नहीं बदलती। यहाँ पर दोनों के दरमियान एक इमोशनल गैप भी नज़र आता है। मिर्ज़ा दिल से सोच रहा होता है जबकि हीर मजबूरियों और ज़िम्मेदारियों के दरमियान फंसी हुई है। अब कहानी का सबसे पावरफुल सीन आता है आगा जी का। वो हवेली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि ये दीवारें उनके लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी है। उनका कहना होता है कि जब तक वो ज़िंदा है कोई भी इस घर को नहीं बेच सकता। लेकिन यहाँ दादी का किरदार एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देता है। वो कहती हैं कि सिर्फ यादों के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती। जब बच्चों की ज़िंदगी दांव पर हो तो फैसले भी वाकई मुश्किल हो जाते हैं। ये सीन असल में पुरानी और नई सोच का क्लैश है। एक तरफ रिवायात और जज्बात और दूसरी तरफ हकीकत और ज़रूरत। इधर तैमूर और कायनात की कहानी भी रुकती नहीं। तैमूर अब भी कंफ्यूज है कि वो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ कितना जा सकता है। कायनात के लिए उसका प्यार और ज़िम्मेदारी दोनों उसे एक मुश्किल पोजीशन में ले आती है और हीर वो अब 3 अलग बैटल्स लड़ रही है, एक अपने घर के लिए, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और एक अपने दिल के खिलाफ। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हवेली बच पाएगी या मजबूरी के आगे हार मान जाएगी? क्या मिर्ज़ा सच में हीर के लिए कुछ कर पाएगा या सिर्फ तसल्ली तक रह जाएगा? और क्या हीर अपने फैसलों पर कायम रह पाएगी जब प्रेशर और बढ़ जाएगा? कहानी अब बहुत क्रिटिकल स्टेज पर आ चुकी है जहां हर डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट सबकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड का डीप प्रेडिक्शन और हिडन क्लूज़ भी शेयर करूं तो ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मिर्ज़ा की हीर की आने वाले एपिसोड के हवाले से, जहां पिछले एपिसोड के इमोशनल ट्विस्ट के बाद कहानी और भी इंटेंस हो चुकी है। इस दफ़ा मोहब्बत या शादी का मसला नहीं बल्कि इज्जत, कर्ज और घर की कीमत दांव पर लगी हुई है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हीर को कायनात के दिल का राज पता चलता है और तैमूर अपनी बहन के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन अब कहानी एक नई डायरेक्शन लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है हीर के घर की तरफ, जहां फाइनेंशियल प्रेशर अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। हीर के मामू और घर वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हवेली को बेच देने की बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम मिल सकती है जो ना सिर्फ पुराने कर्ज ख़त्म करेगी बल्कि उनकी ज़िंदगी को भी आसान बना देगी। ज़ुबैर का किरदार यहाँ काफ़ी एग्रेसिव नज़र आएगा। वो सीधा कह देता है कि इतना बड़ा कर्ज किसी जॉब या मेहनत से उतरना मुमकिन नहीं, उसके लिए ये एक बिजनेस डील है। इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच ज़रूरी है। लेकिन जीनत जो हीर की मदर हैं, उनका दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता। वो अपनी वालिद की यादों और इज़्ज़त को इस घर से जोड़कर देखती है। उनका कहना होता है कि वो अपनी बेटी का बोझ हल्का करने के लिए अपने बाप की निशानी को कुर्बान नहीं कर सकती। यहाँ पर हीर का स्टांस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो बिल्कुल क्लियर कह देती है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उनके नानों की पहचान है। वो किसी भी सूरत में अपना हिस्सा लेकर इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। इसी दरमियान एक और डेंजरस एंगल सामने आता है। कर्ज देने वाले लोग, उनका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि हिंट मिलता है कि अगर पैसे वापस ना हुए तो बात सिर्फ फाइनेंशियल लॉस तक नहीं रहेगी। दूसरी तरफ मिर्ज़ा भी सब कुछ समझ रहा होता है। वो हीर से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेली नहीं है। मिर्ज़ा का कहना होता है कि अगर वो चाहे तो वो हर मुश्किल में उसका साथ दे सकता है। लेकिन हीर का जवाब यहाँ भी बहुत रियलिस्टिक होता है। वो कहती है कि सिर्फ साथ देने से मसला हल नहीं होते, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो जज्बात से नहीं बदलती। यहाँ पर दोनों के दरमियान एक इमोशनल गैप भी नज़र आता है। मिर्ज़ा दिल से सोच रहा होता है जबकि हीर मजबूरियों और ज़िम्मेदारियों के दरमियान फंसी हुई है। अब कहानी का सबसे पावरफुल सीन आता है आगा जी का। वो हवेली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि ये दीवारें उनके लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी है। उनका कहना होता है कि जब तक वो ज़िंदा है कोई भी इस घर को नहीं बेच सकता। लेकिन यहाँ दादी का किरदार एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देता है। वो कहती हैं कि सिर्फ यादों के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती। जब बच्चों की ज़िंदगी दांव पर हो तो फैसले भी वाकई मुश्किल हो जाते हैं। ये सीन असल में पुरानी और नई सोच का क्लैश है। एक तरफ रिवायात और जज्बात और दूसरी तरफ हकीकत और ज़रूरत। इधर तैमूर और कायनात की कहानी भी रुकती नहीं। तैमूर अब भी कंफ्यूज है कि वो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ कितना जा सकता है। कायनात के लिए उसका प्यार और ज़िम्मेदारी दोनों उसे एक मुश्किल पोजीशन में ले आती है। और हीर वो अब 3 अलग बैटल्स लड़ रही है, एक अपने घर के लिए, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और एक अपने दिल के खिलाफ। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हवेली बच पाएगी या मजबूरी के आगे हार मान जाएगी? क्या मिर्ज़ा सच में हीर के लिए कुछ कर पाएगा या सिर्फ तसल्ली तक रह जाएगा? और क्या हीर अपने फैसलों पर कायम रह पाएगी जब प्रेशर और बढ़ जाएगा? कहानी अब बहुत क्रिटिकल स्टेज पर आ चुकी है जहां हर डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट सबकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड का डीप प्रेडिक्शन और हिडन क्लूज भी शेयर करूं तो ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मिर्ज़ा की हीर की आने वाले एपिसोड के हवाले से, जहां पिछले एपिसोड के इमोशनल ट्विस्ट के बाद कहानी और भी इंटेंस हो चुकी है। इस दफ़ा मोहब्बत या शादी का मसला नहीं बल्कि इज्जत, कर्ज और घर की कीमत दांव पर लगी हुई है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हीर को कायनात के दिल का राज पता चलता है और तैमूर अपनी बहन के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन अब कहानी एक नई डायरेक्शन लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है हीर के घर की तरफ, जहां फाइनेंशियल प्रेशर अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। हीर के मामू और घर वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हवेली को बेच देने की बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम मिल सकती है जो ना सिर्फ पुराने कर्ज ख़त्म करेगी बल्कि उनकी ज़िंदगी को भी आसान बना देगी। ज़ुबैर का किरदार यहाँ काफ़ी एग्रेसिव नज़र आएगा। वो सीधा कह देता है कि इतना बड़ा कर्ज किसी जॉब या मेहनत से उतरना मुमकिन नहीं, उसके लिए ये एक बिजनेस डील है। इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच ज़रूरी है। लेकिन जीनत जो हीर की मदर हैं, उनका दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता। वो अपनी वालिद की यादों और इज़्ज़त को इस घर से जोड़कर देखती है। उनका कहना होता है कि वो अपनी बेटी का बोझ हल्का करने के लिए अपने बाप की निशानी को कुर्बान नहीं कर सकती। यहाँ पर हीर का स्टांस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो बिल्कुल क्लियर कह देती है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उनके नानों की पहचान है। वो किसी भी सूरत में अपना हिस्सा लेकर इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। इसी दरमियान एक और डेंजरस एंगल सामने आता है। कर्ज देने वाले लोग, उनका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि हिंट मिलता है कि अगर पैसे वापस ना हुए तो बात सिर्फ फाइनेंशियल लॉस तक नहीं रहेगी। दूसरी तरफ मिर्ज़ा भी सब कुछ समझ रहा होता है। वो हीर से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेली नहीं है। मिर्ज़ा का कहना होता है कि अगर वो चाहे तो वो हर मुश्किल में उसका साथ दे सकता है। लेकिन हीर का जवाब यहाँ भी बहुत रियलिस्टिक होता है। वो कहती है कि सिर्फ साथ देने से मसला हल नहीं होते, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो जज्बात से नहीं बदलती। यहाँ पर दोनों के दरमियान एक इमोशनल गैप भी नज़र आता है। मिर्ज़ा दिल से सोच रहा होता है जबकि हीर मजबूरियों और ज़िम्मेदारियों के दरमियान फंसी हुई है। अब कहानी का सबसे पावरफुल सीन आता है आगा जी का। वो हवेली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि ये दीवारें उनके लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी है। उनका कहना होता है कि जब तक वो ज़िंदा है कोई भी इस घर को नहीं बेच सकता। लेकिन यहाँ दादी का किरदार एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देता है। वो कहती हैं कि सिर्फ यादों के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती। जब बच्चों की ज़िंदगी दांव पर हो तो फैसले भी वाकई मुश्किल हो जाते हैं। ये सीन असल में पुरानी और नई सोच का क्लैश है। एक तरफ रिवायात और जज्बात और दूसरी तरफ हकीकत और ज़रूरत। इधर तैमूर और कायनात की कहानी भी रुकती नहीं। तैमूर अब भी कंफ्यूज है कि वो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ कितना जा सकता है। कायनात के लिए उसका प्यार और ज़िम्मेदारी दोनों उसे एक मुश्किल पोजीशन में ले आती है। और हीर वो अब 3 अलग बैटल्स लड़ रही है, एक अपने घर के लिए, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और एक अपने दिल के खिलाफ। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हवेली बच पाएगी या मजबूरी के आगे हार मान जाएगी? क्या मिर्ज़ा सच में हीर के लिए कुछ कर पाएगा या सिर्फ तसल्ली तक रह जाएगा? और क्या हीर अपने फैसलों पर कायम रह पाएगी जब प्रेशर और बढ़ जाएगा? कहानी अब बहुत क्रिटिकल स्टेज पर आ चुकी है जहां हर डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट सबकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड का डीप प्रेडिक्शन और हिडन क्लूज़ भी शेयर करूं तो ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मिर्ज़ा की हीर की आने वाले एपिसोड के हवाले से, जहां पिछले एपिसोड के इमोशनल ट्विस्ट के बाद कहानी और भी इंटेंस हो चुकी है। इस दफ़ा मोहब्बत या शादी का मसला नहीं बल्कि इज्जत, कर्ज और घर की कीमत दांव पर लगी हुई है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हीर को कायनात के दिल का राज पता चलता है और तैमूर अपनी बहन के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन अब कहानी एक नई डायरेक्शन लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है हीर के घर की तरफ, जहां फाइनेंशियल प्रेशर अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। हीर के मामू और घर वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हवेली को बेच देने की बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम मिल सकती है जो ना सिर्फ पुराने कर्ज ख़त्म करेगी बल्कि उनकी ज़िंदगी को भी आसान बना देगी। ज़ुबैर का किरदार यहाँ काफ़ी एग्रेसिव नज़र आएगा। वो सीधा कह देता है कि इतना बड़ा कर्ज किसी जॉब या मेहनत से उतरना मुमकिन नहीं, उसके लिए ये एक बिजनेस डील है। इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच ज़रूरी है। लेकिन जीनत जो हीर की मदर हैं, उनका दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता। वो अपनी वालिद की यादों और इज़्ज़त को इस घर से जोड़कर देखती है। उनका कहना होता है कि वो अपनी बेटी का बोझ हल्का करने के लिए अपने बाप की निशानी को कुर्बान नहीं कर सकती। यहाँ पर हीर का स्टांस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो बिल्कुल क्लियर कह देती है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उनके नानों की पहचान है। वो किसी भी सूरत में अपना हिस्सा लेकर इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। इसी दरमियान एक और डेंजरस एंगल सामने आता है। कर्ज देने वाले लोग, उनका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि हिंट मिलता है कि अगर पैसे वापस ना हुए तो बात सिर्फ फाइनेंशियल लॉस तक नहीं रहेगी। दूसरी तरफ मिर्ज़ा भी सब कुछ समझ रहा होता है। वो हीर से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेली नहीं है। मिर्ज़ा का कहना होता है कि अगर वो चाहे तो वो हर मुश्किल में उसका साथ दे सकता है, लेकिन हीर का जवाब यहाँ भी बहुत रियलिस्टिक होता है। वो कहती है कि सिर्फ साथ देने से मसला हल नहीं होते, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो जज्बात से नहीं बदलती। यहाँ पर दोनों के दरमियान एक इमोशनल गैप भी नज़र आता है। मिर्ज़ा दिल से सोच रहा होता है जबकि हीर मजबूरियों और ज़िम्मेदारियों के दरमियान फंसी हुई है। अब कहानी का सबसे पावरफुल सीन आता है आगा जी का। वो हवेली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि ये दीवारें उनके लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी है। उनका कहना होता है कि जब तक वो ज़िंदा है कोई भी इस घर को नहीं बेच सकता। लेकिन यहाँ दादी का किरदार एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देता है। वो कहती हैं कि सिर्फ यादों के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती। जब बच्चों की ज़िंदगी दांव पर हो तो फैसले भी वाकई मुश्किल हो जाते हैं। ये सीन असल में पुरानी और नई सोच का क्लैश है। एक तरफ रिवायात और जज्बात और दूसरी तरफ हकीकत और ज़रूरत। इधर तैमूर और कायनात की कहानी भी रुकती नहीं। तैमूर अब भी कंफ्यूज है कि वो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ कितना जा सकता है। कायनात के लिए उसका प्यार और ज़िम्मेदारी दोनों उसे एक मुश्किल पोजीशन में ले आती है और हीर वो अब 3 अलग बैटल्स लड़ रही है, एक अपने घर के लिए, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और एक अपने दिल के खिलाफ। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हवेली बच पाएगी या मजबूरी के आगे हार मान जाएगी? क्या मिर्ज़ा सच में हीर के लिए कुछ कर पाएगा या सिर्फ तसल्ली तक रह जाएगा? और क्या हीर अपने फैसलों पर कायम रह पाएगी जब प्रेशर और बढ़ जाएगा? कहानी अब बहुत क्रिटिकल स्टेज पर आ चुकी है जहां हर डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट सबकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड का डीप प्रेडिक्शन और हिडन क्लूज़ भी शेयर करूं तो ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।